सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ प्लेसमेंट डायरीज। आज मेरे साथ है उमंग मैम फ्रॉम एनआईटी जलंधर, जिनकी इंटर्न और प्लेसमेंट दोनों माइक्रोसॉफ्ट में हुई है और प्लेसमेंट के लिए मैम को पीपीओ मिल चुका था पहले। तो मैम से पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। जब आप इतनी बड़ी कंपनी को टारगेट करते हो तो कैसे कौन सी स्किल्स पे काम करना होता है, चाहे वो छोटा लेवल हो चाहे वो बड़ा लेवल हो, और कौन कौन सी वो ट्रिक्स एंड टिप्स होती है जब आप एक बड़ी कंपनी को टारगेट करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर and join with me. So start with introduction. Okay, so as you already have informed about me to your audience that my name is Umang Sharma and I am mainly a student of computer science and engineering from NIT Jalandhar, and I did my internship in 2020 summers at Microsoft, and then I got placed at Microsoft by bagging the pre-placement offer from them. So very nice to meet you, ma'am. And so first of all, ma'am, how your journey is to be go to Microsoft? How you think when you should schedule the Microsoft company to be tackle, or some other big companies like Google, Paytm, वगैरह, etc. Okay. I think if I start from the beginning, from my very first year of the college, I completely focused on my academic Okay. because initially my branch was not computer science. It was ICE, Instrumentation and Control Engineering. So Okay. for me, it was really very important to upgrade myself to CSE in order to, be eligible for each and every company which visits a campus, Okay. IT company. So in my first year, I completely focused on my academics, and then in second year, I was already 1 year behind the students who were already in CSE. Okay. Like these days, people start coding so early, and new technologies, web development, Android development, ML, and so many other things so early. So I felt a lot like I am lagging behind all my classmates. And I was at the same time very much confused from where to start. Should I start with DSA or should I start with any development or something? So I decided to make my path very clean and to start with DSA slowly and slowly. Okay. So I started working over DSA. So I think it was my third semester when I started DSA, and solving small problems, like very easy problems on CodeChef. Some workshop were also conducted by our seniors at our college. So I come to know about what is Code Chef, what is Code Forces, and how we can practice on GFG and Lead Code. So I found GFG very simple and comfortable platform for me to practice DSA. Okay. I purchased one book, that is Narsimha Karumanchi. It is really very good book to follow for DSA. So I started that book, and in a very systematic manner. Like there are n number of sources over internet which we can follow for these topics. Like IT sector is such a big thing, and if we want to get into there are n number of sources. So I like clearly jotted down the points and the sources which I have to follow so that I may not get confused. So Okay. I strictly followed GFG for my DSA and practiced a lot in a very systematic manner, like first arrays and then proceeding onwards, as you all how we do DSA. So in second semester I did that. Sorry, in third semester. And when it came to fourth semester, I was in little pressure. Like I just know a little bit of DSA, but it's only one sem left when companies will start visiting my campus. Okay. And I don't know about competitive coding, time-based coding especially. Like how will I face the first round of any company? So at that time, I started a little bit of CodeChef. I gave few challenges on CodeChef as well. But to be very clear, I'm not a competitive coder. I just Okay. did for I think hardly 1 month, and I was like feeling it is not my thing. So I focused on DSA. If I talk about what I did in new technologies or something, again I was very confused what to start, whether I Okay. should go for ML or Android or web development. And seriously, I did everything, but nothing in depth. Okay. Okay. So ultimately, I decided to make some simple projects based on database and Java, and I made two simple projects just in order to write it down in my resume. And it was also used by my brother who is in Indian Army. So I made those two projects in my fourth semester.
apart from it, in my fourth semester, I talked to my seniors like what are the other subjects which are really important for interviews, which include DBMS if we consider internship interviews. So it is DBMS, SQL most importantly, and object-oriented programming and DSA. Okay. Basically, these things if we discuss about like broad topics which we need to cover. And yes, the most important is problem solving skill, which comes everywhere if we go in OOPS or SQL. Everything in computer science is doing is basically solving a problem, you know. So Yes. problem solving skill is really very important. So I try to focus on that. Again, in the summer break, I think that was the golden period after fourth semester, which I have used wonderfully in order to prepare for company interviews. So I did one coding ninja course from Coding Ninjas, and it was a competitive eminence. I don't know, remember the Okay. like the name exactly, but that course really helped me a lot for time-based coding and covering all the basic to advanced topics of DSA and all different type of problems. You know, like Yes. when you get everything at one in one course, you feel much more confident. So I utilized my summer break wonderfully. I completed everything, and then 1 week before the Microsoft arrived, notification came in our group like Microsoft will be this first company visiting your campus. So me along with my many friends were very scared, like it's our first company, first interview if we get chance for the interview. So we all were very scared, and to be very frank, I was not sure at all that I will be able to clear first round or I will be able to get into Microsoft. And I have not imagined of clearing Microsoft, but yes, I was confident that yes, whatever I know, I will give my 100% to it, Okay. and let's see the result. Yes. So when Microsoft came, I was very happy when I cleared first round. There were total 5 rounds of interviews at Microsoft. So I was very happy when I cleared first round, and then again 4 more rounds were there, and ultimately I got selected. So Microsoft was the first company, and I was lucky enough to get selected in the first company which visited our campus. Okay, that's nice. Can you explain the number of rounds with a little bit information about how much day preparation need to be need about these rounds? Okay, okay. So first round of every company and Microsoft also is coding round. So it was a 90-minute coding round in which 3 coding questions were there. So coding questions were, I think, from easy to medium level, but few questions were very tricky. So like coding questions were easy to medium, but trick was involved. So if Yes. at the right time the trick is clicked in your mind, you are able to clear it. So that was about first round. So those candidates who cleared, so every round was elimination round. Okay. So next round was a group fly round. So that was really interesting round, which I don't think other companies have. In which it was completely pen and paper round. One coding question along with one system design question was given to us, Just and maybe. we have to write its answer on pen and paper. And the invigilators were the team from Microsoft only, and they were our mentors also. Like we were divided into groups, and mentors were allotted to us. And then the question was given. I think the time duration was 1 hour exactly. Okay. And in that duration, we not only have to answer the question on pen and paper, but also we have to discuss our approach, our ideas, how we are proceeding toward our problem, how we are, like what scenarios we are considering in our system design. We have to discuss with our mentors. Okay. And mentors were so friendly, and they were so helping in nature. So they were very like very excited and very curious to know what is going in our mind. So based on these things, how neatly and clearly we write code on pen and paper, and in any system design question, how we think, what approaches we have in our mind, we have to discuss with them, and at the same time we have to jot them out in our paper. Okay. So these were the things which were considered in second round. So those candidates who cleared the second round, that is group fly round, Okay. went for third round. So third and fourth round were technical rounds in which like normal data structures, OOPS or DBMS questions were asked. Uh,
some different type of questions were asked, like like some open-ended problems in which your ideas matters a lot. So ओके those types of questions were also asked to me as well as to other students. So these were two technical rounds, round number 3 and 4. Then round number 5 was HR round, in which normal discussion was there, like why we want to join the company, or how we see ourselves in next 5 years, and how we update ourselves with technology, and why we love computer science and engineering. So these types of questions were asked. So these were the total 5 rounds for internship. ओके ओके सो प्रोसीजरल राउंड्स होते हैं पूरे। मैम जैसे आपने बोला कि आप पूरा काफ़ी डीप में नहीं किया, आपने तीनों चीज़ें कर ली, वेब, मोबाइल एप्लीकेशन एंड एमएल। तो ये कैसे रिलेट करते हैं आप, मतलब कभी आप इंटरव्यू में पूछें तो आपको डिटेलिंग होती है क्या उसमें, जो आप टेक स्टैक करके जाते हो? एक्चुअली देखो क्या होता है कि इंटरव्यूअर हमसे वो चीज़ें पूछता है जो हमने अपने रिज्यूमे में डाली हुई है। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि हम रिज्यूमे में वही डालें जिसके बारे में हम पूरे तरह से कॉन्फिडेंट हो, और उसका अगर हमने कोई प्रोजेक्ट भी किया है तो वो प्लस पॉइंट है। ओके तो जैसे मैंने बताया कि मैं हर तरफ भागी, कभी वेब, कभी एंड्रॉइड, एंड बेसिकली अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर, अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होकर, एंड मैंने बाकी सारी चीज़ें देखी भी, सब में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाए। लेकिन मैं किसी में भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि इंटरव्यूअर अगर उससे मेरे बारे मतलब मेरे से उसके बारे में कुछ पूछता है, तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो ओके मैंने लाइक लिटरली उसको अपने रिज्यूमे में रखा ही नहीं। मैंने अपने रिज्यूमे के स्किल्स में सिर्फ़ अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, अपनी जो लैंग्वेजेज़ मुझे आती थी, जो प्रोजेक्ट्स मैंने जावा और डीबीएमएस के बेस पे किए हुए थे, उनके बारे में लिखा। तो मैं कॉन्फिडेंट थी नहीं, इसलिए मैंने उन्हें अपने रिज्यूमे में रिप्रेज़ेंट ही नहीं किया। अदरवाइज़ अगर कोई स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है और वो उसे रिज्यूमे में लिखता है, तो डेफ़िनिटली अगर इंटरव्यूअर उस फ़ील्ड का है, तो उससे डेफ़िनिटली क्वेश्चन पूछेगा, और अगर उस फ़ील्ड का नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड तो क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। ओके श्योर। सो मैम कॉलेज इन्वायरमेंट कैसा होता है जब बड़ी कंपनी आपके कॉलेज में पिच करती हैं? तो आपको कॉलेज की तरफ से कैसी सपोर्ट मिलती है, या फिर कॉलेज सिस्टम में आपको कैसे सपोर्ट करता है इस चीज़ों के लिए? ओके। सो जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सारे स्टूडेंट्स के बीच में, कि और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है, एक फ्रेंड्स के बीच में भी एक कंपटीशन टाइप का डेवलप हो जाता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो जी। डेफिनेटली चाहते हैं कि हम भी जाए, हमारे फ्रेंड्स भी जाए एक साथ इस बड़ी कंपनी में। हुँ। तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, प्लस सपोर्टिव माहौल भी होता है कि अगर किसी को रिजेक्शन मिलती है तो उसे भी सपोर्ट किया जाता है। प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, आई थिंक वो सीनियर्स का होता है यहाँ पर रोल, कि वो हमें बताते हैं कि कोई कंपनी आई है तो उसके इंटरव्यूअर्स का क्या माइंडसेट होता है, और उसके जो लाइक कंपनी स्टूडेंट्स में क्या चाहती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट टाइम मेरे सीनियर जो थे, राहुल सर, हुँ। उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। उन्होंने मैं उनसे कंटीन्यूअसली टच में थी, तो मेरी जूनियर्स को भी यही एडवाइस है कि जो हम कंपनी टारगेट करते हैं, जिसमें हम जाना चाहते हैं, उसमें जो भी सीनियर प्लेस्ड है, या आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई एम्प्लॉयी है, जो भी है, आप उसके टच में रहें। क्योंकि सर ने मेरी बहुत हेल्प की मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करने में, कि मुझे पता चल सका कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, और उस ओके। हिसाब से ही मुझे अपने अंदर डेवलपमेंट करनी है। जी। तो मैम जैसे डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको एक जो नर्वसनेस भी होती होगी बड़ी कंपनी जब आती है, कोई भी, तो वो जी। नर्वसनेस को आप कैसे टैकल करते हैं? मतलब फ़ियर जो होता है इंटरव्यू का, बहुत लोगों को फ़ियर होता है, वो कैसे टैकल किया जाता है? ओके, तो अगर हम इंटरव्यू फ़ियर की बात करें, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो बहुत इफ़ेक्टिव भी है, वो है मॉक इंटरव्यू। मैंने ओके। अपने इंटर्नशिप के टाइम मॉक इंटरव्यूज़ नहीं किए थे, वो मेरा एकदम ही न्यू एक्सपीरियंस था किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो मैं उस वक़्त के लिए तो नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, जो मेरे इंटर्नशिप के बाद जो मेरे इंटरव्यू हुए, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ हुए, उसके लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ की बहुत स हेल्प ली। मेरे फ्रेंड ने मेरी बहुत हेल्प की, मैंने उसके साथ बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील हुआ, और इस तरह से लगा कि अगर कोई इंटरव्यूअर मुझसे सामने पूछता है, तो मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ? क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में हमें जितना आता है, कितना नहीं आता, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर वो ज़्यादा करता है कि हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ओके। अगर हमें बहुत कुछ आता है, बट हमें ये नहीं पता कि हम सामने वाले को कैसे समझाएँ, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हमें थोड़ा-सा भी आता है, बट वी हैव द स्किल, हमें पता है कि जितना पता है हमें, हम इंटरव्यूअर को उससे कन्विंस कर सकते हैं, ओके। उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है।
तो अगर नर्वसनेस को कम करना है, अगर आप इंटर्नशिप के इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं या फिर प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तो मेरी यही सलाह होगी कि आप मॉक इंटरव्यूज जरूर दें। एक फ्रेंड के साथ, दो फ्रेंड के साथ बदल बदल के भी देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, थैंक यू। मैम जैसे आपका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है, तो आपने जो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट हुआ माइक्रोसॉफ्ट से, आपको पीपीओ मिला है, वो पीपीओ लेने के चांसेस कहाँ से क्रिएट होते हैं? मतलब आप कैसी स्किल्स वहाँ पे डेवलप करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ पे, आपको जो पीपीओ का मौका मिल जाता है? ओके ओके। तो मैं बात करूं अगर माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक की, तो जनरली जो भी हमारा पहले, मतलब इस साल तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो था क्योंकि ओके। कोरोना था, हम वर्चुअल इंटर्नशिप कर रहे थे, तो हम्म। सिनेरियो थोड़ा सा अलग था। नहीं तो जनरली जो 2017 के बाद से जो सिस्टम था वो ये था कि हमारा जो प्री प्लेसमेंट ऑफर है वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि हम कंपनी में इंटर्नशिप के दौरान कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस साल हमारे इंटर्नशिप का परफॉर्मेंस प्लस इंटरव्यू जो हमारा लास्ट में हुआ, जिसे हम पीपीआई कहते हैं, वो ओके। भी मैटर करता था। तो पीपीओ के चांसेस अगर हम देखें कि इंटर्नशिप, किसी भी इंटर्नशिप के दौरान पीपीओ के चांसेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं, या हम अपना कैलिबर कंपनी को या अपने मैनेजर को, अपने मेंटर को कैसे शो कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंटर्नशिप को इस तरह से करना चाहिए कि हम कंपनी के बारे में जानें। किसी भी, ओके। जो भी इंटर्न है ना, उसे अपने मेंटर्स के साथ बहुत ज़्यादा रेगुलर इंटरैक्शन करनी चाहिए। उसे एक क्यूरियस कैंडिडेट होना चाहिए कि वो कंपनी में जानने के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। वो जानना चाहता है कि कंपनी में क्या काम होता है, कैसे काम होता है। जो उसके टीम मेंबर्स हैं, उन्हें भी पता चलना चाहिए, ताकि उन्हें एटलीस्ट ऐसा तो फील होना चाहिए कि हम कंपनी के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग थिंग्स अबाउट द कंपनी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि प्रोजेक्ट एक असाइन होता है आपको। दैट कैन बी अ डमी प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ एक रिसर्च बेसिस पर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो प्रोडक्शन लाइन में जाने वाला है, मतलब उसको ओके। हमें इम्प्लीमेंट करना है एंड दैट विल बी रिलीज टू द कस्टमर्स। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो डमी प्रोजेक्ट नहीं था, मेरा प्रोडक्शन लाइन वाला प्रोजेक्ट था, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स का डमी प्रोजेक्ट भी था। तो लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके। तो इंटर्नशिप के दौरान आई थिंक जो सबसे ज्यादा चीज मेरी टेस्ट हुई, जिसपे मार्किंग हुई आई थिंक, वो ये थी कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करती। तो हम, हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, वो इंटरव्यू हो या फिर वो नॉर्मल हमारे मेरी आपके साथ डिस्कशन हो रही है वो हो, या फिर हम कंपनी में काम कर रहे हैं वो हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कितने तरीकों से उस बारे में सोच सकते हैं, हम वो सोचे, फिर उसे अपने मेंटर के साथ डिस्कस करें। वो जो चीज है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती है मेंटर्स को भी, क्योंकि एक्चुअली जब हम रियलिटी में जाकर जॉब करेंगे तब भी जी। इस तरह की होगी कि मीटिंग्स होंगी, हम डिस्कस करेंगे। तो वो एक चीज इम्पोर्टेंट है। और एक है ग्रोथ माइंडसेट, कि नई नई चीजों को लाइक सीखने के लिए हमेशा क्यूरियस रहना। क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जब इंटर्नशिप की तो उसके पहले मैं काफी नर्वस थी, मुझे, क्योंकि ओके। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मुझे किसी भी टेक स्टैक की डीप में नॉलेज नहीं थी। हम्म। तो मैंने काफी सारी चीजें पहले से सीखने की कोशिश की, रूरल साइट पे बहुत सारे कोर्सेज किए, एज़्योर के बारे में जाना। और जब मैं वहाँ प्रोजेक्ट करने गई तो प्रोजेक्ट मुझे लिटरली एकदम न्यू मिला, जिस टेक्नोलॉजी पे, टेक स्टैक पे मैंने काम नहीं किया था। ओके। तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि अगर हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है एंड ग्रोथ माइंडसेट है, तो हमें कोई भी नया काम मिलेगा तो वो हम कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट इन एनी एम्प्लॉय, इन एनी कैंडिडेट। यही मेरे सीनियर ने मुझसे कहा था एंड यही चीज मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की। तो ओके। अगर हमें किसी भी इंटर्नशिप को पीपीओ में कन्वर्ट करना है, अगर माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी कंपनी हो, तो आई थिंक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कैंडिडेट का क्यूरियस रहना, सेम एक्साइटमेंट रहना फॉर इंटर्नशिप फ्रॉम डे वन टू डे एंड, टू द लास्ट डे, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको सिंपल से सिंपल सॉल्यूशन भी पता है, ब्रूट फोर्स भी पता है, वो भी डिस्कस करना चाहिए, शायद कुछ इम्प्रूवमेंट मिल जाए। तो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो काफ़ी प्रोसेसफुल पाथ है इसका। तो मैम जो नए जूनियर्स जाना चाहते हैं इस फील्ड में, जो काफ़ी बड़ी कंपनी को पिच करना चाहते हैं, उनके लिए क्रिस्प सा रोड मैप क्या होगा? केवल डीएसए काफ़ी रहेगा कि उसको और माइक्रो लेवल पे काम करना होगा, कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करना होगा जो उन्हें पिच करवा देगी कंपनी श्योरली? ओके, सो आई थिंक जो अच्छा रोड मैप होगा वो ये होगा कि लाइक जितने भी सीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं हम्म। उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए।
जरूरी नहीं है आप बहुत हाई लेवल पढ़ें, अगर आपको हर चीज का फंडामेंटल क्लियर है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई भी बड़ी चीज आसानी से आगे पढ़ सकते हैं। ओके। तो आई थिंक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रांग होना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें डीएसए की तरफ बढ़ना चाहिए, एंड डीएसए में ग्रेजुअली जैसे फ्रॉम वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर से बड़े डेटा स्ट्रक्चर तक जाना चाहिए। तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड हमें तब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए जब तक हमें नहीं लगता कि कोई भी नया क्वेश्चन आ जाएगा, हमें इतना आता है कि हम कुछ ना कुछ करके उसका लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं एंड एटलीस्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। तो इतना हमें आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, प्रोजेक्ट्स करना सच में इम्पोर्टेंट है। मैंने एट द एंड प्रोजेक्ट किए थे, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही इस पर अच्छे से ध्यान दें, मेरी तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में ना भटके, एक टेक्नोलॉजी को रख पकड़े जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, अच्छे से रिसर्च करें एंड उसके बारे में आप डीपली पढ़ें, उसके लिए बुक्स पढ़ें, कोर्सेज करें एंड एक दो प्रोजेक्ट अच्छे अपने रिज्यूमे में जरूर डालें। एंड बस, और मॉक इंटरव्यूज तो आप जरूर दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किसी भी कंपनी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है तो हर कंपनी का डिफरेंट प्रोसीजर होता है। तो एक तो ये तो जनरल ट्रैक हो गया, आप अपने सीनियर्स के साथ हमेशा टच में रहें, उनसे बात करते रहें क्योंकि उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे डेफिनेटली। प्लस आई थिंक मॉक इंटरव्यूज जो मैंने आपको बताया उसकी प्रैक्टिस करते रहें। आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर देम। एंड अगर उन्हें लाइक कोई कोर्सेज मिल जाएं बेटर, अगर ऐसा लगता है कि उन्हें कोई कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो कोर्सेज लेने में कभी भी ऐसा मत सोचे कि नहीं लेते कोर्सेज। कोर्सेज आर रियली वेरी हेल्पफुल, लेकिन जब वो किए हों ढंग से। हम ओके। कोई भी कोर्स कर ले, मेरी यही गलती थी कि मैंने डेवलपमेंट के कोर्सेज किए लेकिन मैंने उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आप कोई चीज करें तो उसे इम्प्लीमेंट जरूर करें, तो ही उसका फायदा है। ओके, सो मैम, जब भी हम कोई टेक स्टैक करते हैं या कोई बड़ी कंपनी आती है, क्या उन्हें कोई टेक स्टैक से मतलब होता है? आपने कोई टेक स्टैक कर रखा है, हमें तो ये टेक स्टैक चाहिए, या फिर उन्हें मतलब नहीं क्योंकि उनको खुद डेवलपमेंट आगे अपने आप करवानी होती है आपसे? तो इसके जैसे अगर मैं बात करूँ बड़ी कंपनीज की, टेक जाइंट्स की, तो उनका कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं होता किसी भी टेक स्टैक के लिए, क्योंकि वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल के लिए हमें लेके जाते हैं ओके। और वो उन अपना काम वहाँ पे खुद सिखाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी या इंटर्नशिप के दौरान हमने सीखा होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे कंपनीज देखी हैं जो स्टार्टअप होते हैं, मोस्टली मैंने ये देखा है कि वो स्टार्टअप होते हैं जिसमें जो उनकी ओपनिंग होती है वो एसडीई के नाम से ना होकर एक पर्टिकुलर प्रोफाइल की होती है, या तो फ्रंट एंड डेवलपर होगी या तो बैक एंड डेवलपर की होगी। तो उसके लिए आई थिंक उनका प्री रिक्विजिट होता है कि आपको ये चीजें पहले से आनी चाहिए। लेकिन अगर आप एसडीई प्रोफाइल में जाते हैं टेक जाइंट्स में, तो आई थिंक नहीं होती, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं थी और मैंने किसी भी कंपनी में नहीं सुना है कि प्री रिक्विजिट होती है किसी टेक स्टैक को लेकर। ओके। सो मैम, एक और क्वेश्चन कि लोगों को डीएसए से बहुत फियर रहता है कि डीएसए बहुत बड़ी चीज़ है, काफ़ी मतलब वाइड बोलते हैं लोग इसे कि बहुत बड़ी चीज़ है, मुझसे नहीं होगी, छोड़ देता हूँ, थोड़ा कर लेता हूँ, इतना लिमिट। क्या इसकी कोई लिमिट रखते हैं कंपनीज के जाने के लिए, या फिर लिमिट ही नहीं है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, नेसेसरी है? इसकी देखिए कि डीएसए करना तो नेसेसरी है और सबको लगता है डर। बहुत लंबा प्रोसेस है अगर हम डीएसए चाहते हैं उसको अच्छे से करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, तो लंबा प्रोसेस है, 2 साल लोग करते रहते हैं। तो डीएसए के बिना तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि डीएसए होना चाहिए, जी। क्योंकि डीएसए ही बेस है हमारी कोडिंग का। हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो यूज होते ही होते हैं। लेकिन अगर आप उससे बोर ना हो या आप उससे थके ना, तो उसका एक यही है कि आप धीरे धीरे चलते रहें। लाइक कोडिंग इज सच अ थिंग कि हमें उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। आपका दिन बहुत बिजी था, आप कॉलेज के काम से बिजी हैं, कैसे भी बिजी हैं, आप अपना रूटीन बना के रखिए कि आपको एक दो क्वेश्चंस तो करने ही हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आए कि ये सब क्यों हो रहा है, इनकी क्या जरूरत है और इतना क्यों करना है। लेकिन जब आप धीरे धीरे और डिटेल में जाएंगे, हर तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स को जानेंगे, उसके बाद आप कोई रैंडम प्रॉब्लम उठाएंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। ओके। ऐसे होता है कि हम एरे पढ़ रहे हैं, एरे के 100 क्वेश्चन कर लिए, हम बहुत बोर हो गए, हम्म। तो ये तो बिल्कुल बात है। लेकिन हर एक डेटा स्ट्रक्चर को करने के बाद जब हम रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे ना, तो स्लोली एंड स्लोली आपको मजा आने लगेगा। और ज्यादा मजा तब आएगा जब आप ग्रुप में करेंगे, ओके। अकेले करने में आप डेफिनेटली बोर हो जाएंगे।
तो आप ग्रुप 4 लोगों का ग्रुप बना लें, अगर आपको करना है 2 लोगों का ग्रुप बना लें, उनके साथ डिस्कस करते रहें। वो कोई आपको नई प्रॉब्लम देगा, आप उसको कोई नई प्रॉब्लम दें, चैलेंजेस करें, तो आपको मजा आएगा। आई एम डेफिनेटली बोर नहीं होंगे। तो मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आज का कम्प्लीटली कि क्या हैकाथॉन्स का हिस्सा मानते हैं कि आप बड़ी कंपनी को पिच करने में थोड़ा सा रोल देती हैं, परसेंटेज थोड़ा सा? हाँ, आई थिंक देती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हैकाथॉन्स के थ्रू हायर करती हैं। या फिर अगर आपका हैकाथॉन का कोई एक्सपीरियंस है, तो वो डेफिनेटली आपके रिज्यूमे में वेटेज डालेगा। उन सब के सिवा अगर आप उन सबको हटा दीजिए, रिज्यूमे का या हैकाथॉन्स के थ्रू हायरिंग का, तो फिर भी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने से क्या होगा कि लाइक आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा कि आप टाइम बेस्ड काम कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीम वर्क डेवलप होगा, एंड कोई भी न्यू प्रॉब्लम आई है उसको आपको कैसे टैकल करना है, क्योंकि हम टीम में काम करते हैं तो बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। एंड जी। कंपनी में या इंटर्नशिप में हमें टीम में ही काम करना है जाके, तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में या फिर इंटर्नशिप के दौरान जरूर हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टिप्स एंड ट्रिक्स टू माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करने के लिए। सो गाइज, अगर आपका कोई अभी भी क्वेश्चन बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना और मैं मैम को भेज दूंगा, आपको रिप्लाई वापस आ जाएगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम विद अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।